जरा दोबारा पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो अब जरा इसके यहाँ से कंटिन्यू करना. What do you ask of me? Your son's life? Very well, he shall live. Okay. Seizing the count's hands and raising it to her lips. Oh, thank you, Edmund. You are now the man whom I never cease to regard as no man. So much the better that you should acknowledge it, for I shall not have much longer to be thought noble by you. In renewed terror, what do you mean, Edmund? I mean that since you command me to do so, Mercedes, I must die. Die, Edmund? Who said anything of dying? You do not suppose that, challenged as I have been, I can withdraw from this quarrel and beg your son's pardon. No, Mercedes, a challenge has been issued and a duel must take place. But I shall fire into the air, and it will be my blood, not your son's, which will stain the ground tomorrow. But Edmund, you must not die. You shall not die. Enough, Mercedes. It is settled. Leave me now. He raises his voice. Bertuccio. The door opens and Bertuccio appears. Show the Countess of Morcerf out of the house. But Edmund, I implore you to. Mercedes, say no more. Your son shall not die. I have sworn it. Bertuccio, show this lady to her carriage. Edmund, your life is. Bertuccio, the Countess of Morcerf sees that further expostulation is useless. She is led away by Bertuccio. The Count of Monte Cristo goes to a drawer in a writing desk and takes out a document. He sits down and examines it closely. Bertuccio comes here again. Monte Cristo, Bertuccio, this document is my will to which I am about to put my signature. I wish you to become a witness to it, and I shall also need a second witness. Bertuccio बोलता है, Monsieur Borel has returned, sir. Monte Cristo, then ask him to come in. Bertuccio goes out and returns in Morel. Arfa, पढ़ो बेटा. Ah, my dear Count, I am glad to see that you are not yet tired to bed. All is now settled. It is fixed for tomorrow morning at 8 o'clock in the Bois de Vengeance. The seconds are all chosen, and you may be back here for breakfast by 9 o'clock. एक मिनट को बेटा जरा मैं अटेंडेंस आप लोगों की करूं. ठीक है. तो आगे से Monte Cristo बोलता है, one moment moral, this document which you see here is my will. I will not trouble you to read it, but when I am dead, go to my solicitor and examine it. Meanwhile, I must ask you to witness my signature. पढ़ो भाई. What when you are dead? Yes, must not I be prepared for everything, my friend? True, though in this case such a precaution is hardly necessary, Precaution, मेरा बच्चा, precaution is hardly necessary, and yet if I might entreat you to grant me a favor, I would beg you not to kill Albert. Consider the unhappy youth as a mother. I have not forgotten it. You are offended अरे मेरा party. बच्चा उठ जाओ, क्या हो गया? नींद में हो क्या अभी तक? You are the offended party. क्या हो गया? You are the offended party. You will have the right to fire first. And what I have seen of your marksmanship, I do not doubt that you can kill Albert if you choose. His only chance of safety lies in your generosity. Break his arm, wound him, do not kill him. ठीक है. आगे बढ़ा है. Monte Cristo बोलता है, thank you, Morel, but to tell the truth, I do not need entreating to spare Albert's life. He shall be so well spared that he will return quietly home with his friends. While I? Well, you? That will be another matter. I shall be brought home. No, no. It is, as I've said, Albert will kill me. Kill you, my dear Count. Come, no more words, Morel. Draw near, Bertuccio, I take the pen, thus, and I sign my will. He signs. Now, Morel, write your name here. Morel does so. Ah, Morel, when a man resolves to avenge himself, he should first of all tear out the heart from his breast. मतलब ये हमारे पास यहाँ सीन 2 खत्म हो गया है और मेरे बच्चों यहाँ से तुम लोगों में समझाना शुरू करूंगा, लेकिन जो ये लास्ट डायलॉग है ना, मतलब कातिल जो उसने डायलॉग कह गया ना मोंटे क्रिस्टो, समझाता हूँ तुम लोगों को मैं. रुको. अच्छा मेरे बच्चों,
जैसे कि वजिया वगैरह ही बोल रही थी कि सर हमने यहाँ तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। मैं बेसिकली बेटा चाह रहा था कि एक ऐसे पॉइंट से कंटिन्यू करूं कि जहां से हमारा कुछ मिसिंग ना चला जाए। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से जो काउंटेस होती है वो भीख मांग रही होती है कि अपने बच्चे की जान के लिए कि बख्श दो। और मैंने आप लोगों को मेरे बच्चों मोंटे क्रिस्टो की पास्ट लाइफ के बारे में पूरा बता दिया था। अच्छा मैं पूछता हूँ, जरा मुझे बताओ, तुम लोग मुझे आंसर क्या दोगे? सारे के सारे जरा चैट पे आ जाओ और मुझे आंसर दो कि जो वो है क्या कहते हैं काउंटेस ऑफ मोर्सेवे, मेरे बच्चों बताओ उसका असल नाम क्या है? हम लोगों ने हालांकि अभी पढ़ा है। काउंटेस ऑफ मोर्सेफ का रियल नाम क्या है? बताओ बेटा चैट पे सारे के सारे, शाबाश। काउंटेस ऑफ मोर्सेफ का रियल नेम क्या है? अबीरा, अलिशबा, अमतुल, आरफा, वजीहा, सारे बताओ बेटा। अरे आरफा मेरा बच्चा, काउंटेस का पूछ रहा हूं, मतलब कि उसका जो लड़की है। सारे बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह अमतुल बेटा, शाबाश बेटा। इसका नाम है मर्सिडीज। अच्छा मुझे बताओ मोंटे क्रिस्टो का नाम क्या है? असल नाम क्या है मोंटे क्रिस्टो का? मोंटे क्रिस्टो का पूछ रहा हूँ, पूरा फुल नेम बताओ क्या नाम है उसका? ठीक है, वजिया पूरा नाम क्या है बेटा? सिर्फ एडमंड नाम नहीं है बेटा, पूरा नाम है एडमंड डांटेस। ठीक है, एडमंड डांटेस। और मुझे बताओ काउंट ऑफ मोर्सेफ का पूरा फुल नेम क्या है? बताओ जरा, काउंट ऑफ मोर्सेफ का फुल नेम क्या है बताइए, जल्दी बताओ। काउंट ऑफ मोर्सेफ का रियल नेम क्या है? मैं जरा देखूं तो तुम लोगों को कितना जंग लग चुका है, जरा एक हफ्ते के अंदर अंदर एक आइडिया तो हो, बताइए। अरे बताओ काउंट ऑफ मोर्सेफ का रियल नेम क्या है? सारे कहां गायब हो गए? हाँ बस सारे ब्लैंक बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है किसी को माशाल्लाह से। अभी पढ़ा है लास्ट क्लास में, जो हम क्लास ले रहे थे उसमें पढ़ा है, फिर भी सबको याद नहीं है। ढूंढो बेटा, अब मुझे आंसर दो इस बात का। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे क्लास में थे तुम लोग तो आंसर दो कि भाई काउंट ऑफ मोर्सेफ का रियल नेम क्या है? जो काउंटेस का हस्बैंड है, एल्बर्ट का जो बाप है, उसका नाम क्या है? असल नाम, रियल नेम क्या है उसका? हद हो गई बेटा, फर्डिनेंड मोंटेगो। भूल गए क्या? जब वो स्टोरी बता रहा होता है पूरी की पूरी, अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है, बोलता है ना फर्डिनेंड मोंटेगो। खैर अब सुनो, मोंटेगो क्या बोलता है कि भाई ठीक है तुम्हें अपने बच्चे की जान चाहिए, ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा। और तो ये सुन के काउंटेस बहुत खुश होती है, उसके हाथ पे किस करती है और क्या बोलती है कि तुम आज भी वही इतने अच्छे शख्स हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचा करती थी। तो मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है, चलो अच्छी बात है भाई, मेरे बारे में तुम्हारे इतने अच्छे ख्यालात हैं क्योंकि तुम इतनी देर तक मुझे अच्छा नहीं सोच सकती। तो काउंटेस बोलती क्या मतलब? मोंटे क्रिस्टो बोलता है क्योंकि तुमने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है तो इसका मतलब अब मुझे मरना पड़ेगा। तो काउंटेस बोलती है मरना? तुम्हें क्यों मरना पड़ेगा? मोंटे क्रिस्टो बोलता है वो इसलिए क्योंकि जब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारे बेटे का, एल्बर्ट का, तो मैं लड़ने जरूर जाऊंगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद पीछे हट जाऊंगा? कहते नहीं। कह रही फिक्र मत करो क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है तो तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे चैलेंज किया गया है तो मैं पहले फाइट करूंगा, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बेटे की तरफ शूट नहीं करूंगा बल्कि मैं हवा में फायर कर दूंगा। और हवा में फायर करने से क्या होगा, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा और फिर वो मुझे जान से मार देगा। काउंटेस ना बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है नहीं मैं डिसाइड कर चुका हूँ ये तो वो। आखिर में क्या होता है जब देखता है ना कि काउंटेस उसकी बात नहीं मान रही, वो अपने बटिशो को बुलाता है, कहता है कि काउंटेस को यहाँ से लेके जाओ। वहां से लेके चला जाता है, एकदम खामोशी हो जाती है, अकेला खड़ा हुआ होता है। वो क्या करता है, अपनी विल निकालता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ विल? विल का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? अगर किसी ने माइक पे आगे करना है तो बेशक हैंड रेज कर लो बेटा, मैं आप लोगों का माइक ऑन कर दूंगा। लिखने की अगर लिखने का मूड नहीं हो रहा मुझे बताओ, शाबाश जल्दी। विल का मतलब क्या होता है? शाबाश बेटा वीरा, गुड। ना हाँ बेटा, विल पावर वजह एक अलग चीज है, इसे बोलते हैं वसीयत।
ठीक है, मतलब कि जो विरासत नहीं होती, मतलब कि जो इंसान मरते वक्त अपनी विल लिख के जाता है कि मतलब कि मेरे बाद ये होगा तो मेरे बाद ये होगा, उसे बोलते हैं वसीयत। ठीक है ना। तो ये इसको अब ये क्या कर रहा है, अपनी वसीयत बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये मतलब कि ये क्या सोच रहा है। अभी अभी मोंटे क्रिस्टो ने डिसाइड कर लिया कि ये एल्बर्ट को कुछ नहीं कहेगा, तो ये सोच के जा रहा है कि ये मर जाएगा। इतनी देर में बर्डिशो वापसी आता है, तो ये मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि मुझे दरअसल बर्डिशो 2 लोग विटनेस चाहिए अपने इस डॉक्यूमेंट में साइन के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे विटनेस बनो और मुझे सेकंड विटनेस की जरूरत है। तो बर्डिशो बोलता है कि सर, जो मॉरल आपके दोस्त गए थे ना, वो वापसी आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉरल अभी सीन 2 के स्टार्ट में बात कर रहा था मोंटे क्रिस्टो से, और वो क्यों चाहता है, ताकि वो जो कल मोंटे क्रिस्टो और एल्बर्ट की जो बैटल होने वाली है, ड्यूल होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। मॉरल आता है। अब मॉरल बोलता है कि हाँ, अरे भाई कौन, अल्लाह तो शुक्र है कि तुम मतलब कि सोए नहीं हो, और मैंने कल की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल हम 8 बजे जाएंगे बॉयज विंसेनेस, और तमाम मामला अगर सारे के सारे सही रहे तो हम जो है 9 बजे तक नाश्ता करने के लिए जा रहे होंगे। मतलब अब ये देखो, इस डायलॉग से हमें ये पता चल रहा है कि मॉरल को अपने दोस्त की कैपेबिलिटीज पे, इसके स्किल पे इतना ट्रस्ट है, इतना भरोसा है कि ये जानता है कि अगर मोंटे क्रिस्टो ने लड़ा, तमीज से लड़ा, तो जान से मार देगा उसको। ये जानता है इस बात को कि अगर मोंटे क्रिस्टो तमीज से लड़ा। अच्छा बेटा, हम तो 1 मिनट रुको, मैं जरा चेक करता हूं। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुको जरा। बेटा, आप क्लियर आ रही है मेरी आवाज? अमतुल, आरफा, बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप दोनों को? आरफा बेटा, आपको भी क्लियर आ रही है आवाज? आप दोनों ने कहा था कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके मेरे बच्चों, बेटा मैं ये कह रहा था कि मॉरल आता है और कहता है कि भाई शुक्र है तुम सोए नहीं हो, और कह रहा था मैं दरअसल तमाम मामला कल के डिसाइड कर चुका हूँ। मॉरल कौन है? मोंटे क्रिस्टो का दोस्त है, ठीक है। और कहता है कि कल सुबह हम 8 बजे लड़ने के लिए जाएंगे बॉयज सेवेंसनेस, और अगर तमाम मामला ठीक रहे तो हम क्या करेंगे, कल 9 बजे तक, 8 बजे मतलब 9 बजे तक तमाम मामला को डील करने हम लोग नाश्ता करने पहुंचे होंगे। इस डायलॉग से हमें क्या पता चल रहा है कि मॉरल को अच्छी तरह से अंदाजा है कि मोंटे क्रिस्टो कितना खतरनाक फाइटर है, और अगर ये सीरियस होकर लड़ने पर आ गया तो एल्बर्ट के बचने का कोई चांस नहीं है। मॉरल को ये बात पता है कि अगर ये मोंटे क्रिस्टो तमीज से लड़ने पर आ गया, मतलब अपनी करने पर आ गया, फिर तो एल्बर्ट को कोई बचा नहीं सकता। तो ये बात जानता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, आगे क्या होता है कि मोंटे क्रिस्टो बोलता है मॉरल 1 मिनट रुको, मैंने अपनी वसीयत तैयार करी है, और खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तुम साइन कर दो, तुम मेरे विटनेस बन जाओ। तो मॉरल बोलता है क्या मतलब, वसीयत की क्या जरूरत है, तुम क्यों मरोगे? तो कहता है भाई लेकिन मुझे प्रिपेयर तो करना चाहिए ना हर चीज के लिए। तो मॉरल बोलता है, थोड़ा तफरी में लेके बोलता है, कह रहा है वो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहा है कि बल्कि अगर मैं कहना चाहूँ तो वो ये कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि बल्कि कहते हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम एल्बर्ट को मारना मत, क्योंकि देखो मेरे बच्चों, मॉरल को तो नहीं पता कि जब ये गया हुआ था तो मर्सिडीज और मोंटे क्रिस्टो के पीछे क्या बात हुई है, इनकी पीछे क्या बात हुई है। अभी तक जो मोंटे क्रिस्टो है उसने क्या वादा किया है कि ये एल्बर्ट को नहीं मारेगा। तो यहां पर मॉरल को नहीं पता कि क्या मामला तय पाए हैं, और ये क्या बोल रहा है कि यार मतलब मत मारना, उसकी माँ भी है बेचारी, वो तो जीते जी मर जाएगी। तो आगे से मोंटे क्रिस्टो बोलता है मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे से मॉरल दोबारा बोलता है कि क्योंकि तुम्हें चैलेंज किया गया है तो तुम पहली फायर तुम करोगे, मतलब तुम पहली मतलब तुम शूट करोगे। और जहां तक मैं तुम्हारे निशानों को जानता हूं, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि तुम आराम से एल्बर्ट को मार सकते हो अगर तुम चाहो। तुम उसका हाथ तोड़ देना, जख्मी कर देना, लेकिन उसको जान से मत मारना। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है मॉरल फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एल्बर्ट को कुछ भी नहीं होगा। एल्बर्ट सही सलामत घर पे जाएगा अपने दोस्तों के साथ, जबकि मैं तो यहाँ पर ना चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अब फील हो रहा है कि यार कल तो मैं मर जाऊंगा। तो मॉरल देखता है कि इसके दोस्त का एक्सप्रेशन चेंज होगा, कहता है क्या तुम क्या बोलो? कहता है कि मुझे घर लाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेड बॉडी लाई जाएगी इसी घर पे। तो मॉरल बोलता है नहीं, ये क्या बात हुई? मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि नहीं एल्बर्ट, एल्बर्ट मुझे कल जान से मार देगा, बस बात खत्म, आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या करता है, वो साइन करवाता है, मोंटे क्रिस्टो खुद भी साइन करता है, मॉरल से करवाता है, और बर्डिशो को भी देखता है। आखिर में क्या लिखा हुआ है कि मॉरल, when a man resolves to avenge himself he should first of all tear out the heart from his breast। ठीक। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर ये बोलने का मकसद क्या है कि ये किस सेंस में यूज किया हुआ है, बोल रहे हैं मॉरल बोल रहे हैं
ये मोंटे क्रिस्टो बोलता है मॉरल को कि दोस्त, जब कभी तुम बदला लेना चाहो ना, तो बदला लेने से सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने दिल को निकाल के मार दो, मतलब अपने इमोशंस ना खत्म कर दो। आप देखो इसके साथ क्या हुआ, 14 साल इसने जेल में गुजारे। उसके बाद ये बदला लेना चाहता तो फौरन से जाके मार सकता था चलते फिरते हुए मॉर्सेफ को, लेकिन इसने क्या किया, इसने वेट किया, अपनी ताकत बढ़ाई, अपने आप को काउंट के दर्जे तक लेकर आया, इतना सुपीरियर हो गया, इतना पावरफुल हो गया। और आखिर में क्या हुआ कि काउंटेस आके कुछ आंसू बहा कर चली गई, ठीक है, कुछ आंसू क्या बहा दिए, और काउंटेस ने क्या बोल दिया, भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जिंदा हो कि नहीं जिंदा, तो मुझे तो पहले ही इस धोखे में रखा हुआ था। तो ये देख के बेचारा क्या हो गया, पिघल गया, ठीक है। 20 साल का जो 20 साल की जो नफरत थी वो कहां गई, एक औरत के रोने में क्या हो गई, बेचारा वहीं पिघल गया। मतलब दैट शोज कि वो अभी तक कहीं ना कहीं उसको पसंद करता था, और अब उसको इस बात का एहसास हुआ था कि यार मैं जो इस पे भी गुस्सा था काउंटेस पे, इसको तो इसका तो कोई कसूर ही नहीं है। और उसके दिल में क्या बात आई कि वाकई में एल्बर्ट का तो कोई, एल्बर्ट से मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मेरी असल दुश्मनी किससे, मॉर्सेफ से है। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास सेकंड सीन खत्म, हम थर्ड सीन बेटा आपको एक अलग लेक्चर में पढ़ाएंगे। दैट डजंट मीन कि आज की क्लास खत्म हो गई, आगे हम पढ़ रहे हैं। अब जरा सारे के सारे बेटा ग्रामर निकाल लो, शाबाश। और मुझे बताओ कि हम लोगों ने ग्रामर में लास्ट टाइम टेंस कौन सा पढ़ा हुआ है, जल्दी बताओ। लास्ट टाइम मेरे बच्चों हम लोगों ने ग्रामर में टेंस कौन सा पढ़ा हुआ है, सारे के सारे जल्दी से बताइए मुझको, शाबाश। रजिस्टर निकालो, शाबाश सारे के सारे। प्रेजेंट सिंपल टाइप 2। और वजिया बेटा क्या हम लोगों ने ये डन मतलब कि पूरा कर लिया था बेटा, आंसर वगैरह सारे हो चुके थे बेटा पूरे पूरे, या मैंने आंसर्स टैली करवाने थे बेटा? ठीक है ठीक है। अच्छा तो मेरे बच्चों बेटा अब हम आगे रीड कर रहे हैं, काइंडली ज़रा ध्यान रखिएगा। और कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। मेरे बच्चों पहले मैं आप लोगों को बेटा ज़रा इसके लिखवा रहा हूँ, पहले जो इसके पहले फॉर्मूलाज लिख लेना, उसके बाद लिखना ज़रा ये। प्रेजेंट सिंपल टाइप 2 हो गए थे, अब लिखो पास्ट सिंपल। बेटा ये आपके पास पास्ट सिंपल के ये लिखे हुए आ रहे हैं, काइंडली ज़रा इसको नोट डाउन करना शुरू करो। जब इसको नोट कर लो तो बेटा मुझे ज़रा चैट पे बता देना डन, फिर मैं आपको आगे काम करवाना शुरू करूंगा। शाबाश सारे के सारे शुरू हो जाओ। और ये स्क्रीनशॉट लेने वाला कोई सीन नहीं है, नोट करो पूरा पूरा, क्योंकि मुझे पता है ना बेटा, जो चीज़ मोबाइल में स्क्रीनशॉट बन के जाती है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर दफन हो जाती है, वापसी नहीं निकलती वहां से। तो जल्दी लिखो अब यहाँ पर, नोट डाउन करो। जब नोट डाउन कर लो तो मुझे इन्फॉर्म करना कि सर डन या नोटेड, कुछ भी लिख देना। हाँ तो मेरा बच्चा अमतुल, ये काम फेयर ही करवा रहा हूँ मैं, तफरी थोड़ी कर रहा हूँ। फेयर कॉपी में लिखो मेरा बच्चा, और किस में लिखोगे आप? जल्दी करो। मैं तुम लोगों को ये वाला काम दरअसल मेरे ख्याल से मैं घर से करने के लिए दूंगा, लेकिन अभी जरा हमारे पास लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए बहुत चीजें हैं। बोले क्लास ले रहा हूँ, कौन कौन सी मिस बुला रही है? बोले मैं क्लास ले रहा हूँ। अमतुल मेरा बच्चा, प्रेजेंट सिंपल टाइप 2 के बाद हमने उसके सेंटेंस करवाए हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के बाद मेरा बच्चा अब हम पास्ट सिंपल टाइप 2 करवा रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 हमारे पास प्रेजेंट टाइप 1, प्रेजेंट टाइप 2, सॉरी प्रेजेंट टाइप 1, पास्ट टाइप 1 और फ्यूचर टाइप 1 हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने कही थी प्रेजेंट टाइप 2, और अब हम कर रहे हैं पास्ट टाइप 2, ठीक है मेरा बच्चा। इसका मतलब अगर आपके पास काम नहीं हुआ हुआ तो आपका बेटा मिसिंग में जा रहा है। जल्दी करो भाई, शाबाश।
अरे कर लो अल्लाह की बंदियों, एक बच्ची का सिर्फ मैसेज आया, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। क्या सुस्त बने वो सारे के सारे, जल्दी करो। अब अबिया का भी आ गया, अलिशबा का भी आ गया। अमतुल बेटा तुम करो फटाफट, अमतुल बेटा जल्दी से नोट डाउन करो। नहीं करो अभी, तुम क्या अलग से आई भी हो क्या? जल्दी करो। कमल बेटा आपने भी करना है, आपने लिख लिया क्या? कमल बेटा आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया है। चलो खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, मेरे पास गाड़ी थी। तो बेटा मैं आप लोगों को पहले 2 सेंटेंसेस अपने सामने ही करवाऊंगा, ठीक है? अच्छा जिससे ना पूछूं वो जरा ये नोट डाउन करना शुरू कर देना, ओके? तो हम पूछते हैं पहले बेटा, अबीरा बेटा माइक पर आओ जरा। अबीरा मेरा बच्चा माइक पर आइए। जी सर। बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? मेरे पास गाड़ी थी। अब बेटा हमने, मुझे ये बनाना है, इसके चारों बनाने हैं जिस तरह हम नॉर्मल क्लास में करते हुए आ रहे हैं। तो बताओ बेटा इसका क्या बनेगा, ध्यान से बनाना। सर मैंने क्लासेस ही नहीं ली थी, मैं तो गई हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी सर स्ट्रक्चर मैंने उतार लिया ना? सर मैंने 2 हफ्ते से ज्यादा की क्लासेस नहीं ली है। अरे अरे ये तो आपका टैलेंट है माशाल्लाह से, आपने नहीं, क्या बात है आपकी, ठीक है? लेकिन चलो फिर भी मेरा बच्चा, काम तो करना है ना बेटा। अब जरा सुनो, बेटा आपने स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर लिए मेरा बच्चा? स्ट्रक्चर उतारे आपने, ठीक है? स्ट्रक्चर जी। ठीक है। अब जो है अफर्मेटिव देखो, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा बताओ? उसमें है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट में क्या आएगा इस सेंटेंस के मुताबिक? मेरे पास गाड़ी थी, किसकी बात हो रही है? गाड़ी। अरे मेरा बच्चा सब्जेक्ट, गाड़ी तो ऑब्जेक्ट है ना, मसला नहीं है, कोई बात अच्छा नहीं। तो अगर मेरे पास, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? अपनी बात कर रहा हूँ, अपने लिए क्या यूज करूंगा मैं? जी जी। अच्छा ठीक है, मेरे पास गाड़ी थी। जी। सब्जेक्ट में क्या आएगा आई बेटा? हैड अ कार। हाँ आई हैड अ कार। बिल्कुल, अरे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाओ, शाबाश, आई हैड अ कार। अब जरा नेगेटिव देख के बताओ क्या बनेगा। नेगेटिव देखो क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले क्या आ रहा है देखो? तुमने स्ट्रक्चर नहीं उतारे ना, स्क्रीनशॉट लिया ना तुमने? नहीं, अरे सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं सर से एक तो मिनट कर एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं है, हम है ना बताने के लिए आपको। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देखो। प्लस हाँ हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट क्या आएगा? डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिल्कुल। ऑब्जेक्ट। अब एक मिनट रुक जाओ, कोई इशू नहीं, टैलेंट कोई परेशान मत हो। सब्जेक्ट में दोबारा से क्या आएगा? आई आएगा नहीं आएगा? हाँ। फिर क्या आएगा देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? डिड। आई डेट, आगे क्या आगे लिखा हुआ है? आई डिड नॉट हैव अ कार। हाँ बेटा शाबाश, क्यों परेशान हो रहे हो मेरा बच्चा, खुद तो बना रहे हो, देखो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अब बताओ इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? और डिड आई हैव अ कार। शाबाश, अरे चीटी जबरदस्त मेरा बच्चा। इंट्रोनेगेटिव बनाओ क्या बनेगा? डिड आई नॉट हैव अ कार। ओके सुपर, बन तो क्या, क्यों कंफ्यूज हो रहे मेरा बच्चा? क्लियर है, ठीक है ना? जी। ओके गुड गुड गुड। अच्छा बेटा जरा हम यहाँ बनाते हैं, और अलीशा बेटा आप माइक पर आओ। अलीशा बेटा आप माइक पर आओ। यस सर। बेटा जरा देखो अपने पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा रहा है, जरा पढ़ो हमारे पास। क्या हमारे पास पैसे थे? तो मेरा बच्चा जरा मुझे बताओ कि ये सेंटेंस कौन सा है, इज इट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, कौन सा बेटा ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है? तो बेटा इंट्रोगेटिव है, तो मुझे बताओ इंट्रोगेटिव के मुताबिक जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बताओ क्या बनाओगे, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? डिड वी हैव अ मनी? बेटा मनी इज नॉट काउंटेबल। अगर मनी काउंटेबल होती ना तो हम ये बोलते 1 मनी 2 मनी 3 मनी, लिहाजा आ नहीं लग सकता इसके आगे, ठीक है? आप क्या, बस सिर्फ मनी लिखोगे, यस सर। ठीक है? तो क्या बन जाएगा बताओ? डिड वी हैव मनी। अब बताओ इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा बेटा? डिड वी हैव मनी? अरे मेरा बच्चा वो सही है, लिख दिया मैंने। वी हैव मनी। नहीं गलत, पास्ट बना रहे हो मेरा बच्चा, पास्ट बना रहे हो ख्याल से। वी क्या, वी के आगे हैव नहीं आएगा पास्ट में, यस सर। क्या आएगा देखो? वी हैड मनी। शाबाश गुड। अब नेगेटिव क्या बनेगा बताओ? वी हैड मनी। बिल्कुल नेगेटिव बनाओ। डिड वी हैव
हाँ हेलो नेगेटिव we did बनाओ। not have money शाबाश, वी डिड नॉट हैव मनी। और इंटो नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? we did not have money ओके, इंटो नेगेटिव क्या बनेगा? did इंटो we नेगेटिव। not have money ओके शाबाश, ठीक है। तो did मेरे we बच्चों, not have money ओके ओके सही है। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने ये वाले सेंटेंस बना लिए, ठीक है। जब यहाँ तक कर लो तो मुझे ज़रा मैसेज कर देना कि सर डन, ताकि फिर मैं आपको बेटा आगे सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा। जल्दी से ये वाला ज़रा यहाँ तक जब कर लो तो मुझे ज़रा डन का मैसेज कर देना, फिर मैं आपको पास्ट जो हमारे पास ये है नो एक्शन टाइप 2 के, इसके बेटा मैं आपको ज़रा सेंटेंसेस बनाने के लिए दूंगा। जल्दी से बेटा ज़रा यहाँ तक काम करो पहले, शाबाश जल्दी करो मेरे बच्चों बेटा, उसके बाद मैंने आगे काम करने के लिए तुम लोगों को देना है। ओके सारे बच्चे करो, हमारे पास मीटिंग का टाइम बहुत कम रह गया है। वजिया बेटा ये आपने पूरा पूरा सॉल्व कर लिया ना? बस सेट है। अरे तुम लोग क्या पूरे पूरे आंसर लिखने बैठ गए क्या? फटाफट लिखो तुम लोग डायरेक्ट। और अल्लाह के वास्ते एक बात का ख्याल कर लेना, मैंने ये रोमन में लिखा हुआ है कि मेरे पास गाड़ी थी या क्या हमारे पास पैसे थे। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सेंटेंसेस उर्दू में उतारोगे। अगर तुम लोगों ने ये रोमन में उतारे, यकीन करो बदवाएं लग जाएंगी मेरी। सही है, ये वाली बेवकूफी नहीं करना। जिस ये मैंने तो लिखा हुआ रोमन में, तुम लोग उर्दू में लिखना भाई इन सेंटेंस को, ठीक है, जिस तरह मैं नॉर्मली करवाता हूँ क्लास में। अरे भाई बाकी भी बच्चे मैसेज कर दो, क्या सोच चल रहे हो सारे के सारे? सारे बच्चे करो। अलिशबा, अमतुल, आरफा, कमल बेटा क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। अमतुल बेटा लिखना ही है, ठीक है, काम करना ही है। वरना क्लास देने का फायदा क्या होगा आपकी? चलो मेरे बच्चों बेटा आगे आ जाओ जरा। ये हमारे पास बेटा सेंटेंस आ गए, ठीक है। और इन सेंटेंस मेरे बच्चों जरा सुन लो सारे के सारे। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को बेटा नोट डाउन कर लो, ठीक है, आंसर्स की जगह छोड़ते जाओ, ठीक है, और लिखते रहो, क्योंकि बेटा क्लास का टाइम बहुत कम रह गया है। तो बनाना शुरू मत कर देना, पहले जरा ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो और आंसर्स की जगह छोड़ दो। जब इतना कर लो तो मुझे बोलते ना सर ऑल डन, ताकि फिर मैं बेटा क्लास खत्म कर दूंगा। जल्दी से पहले तमाम सेंटेंसेस मेरे बच्चों जरा ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। जब सारे के सारे नोट डाउन कर लो तो काइंडली जरा मुझे बोल दीजिएगा कि सर ऑल डन, ताकि फिर मैं जरा क्लास खत्म कर दूंगा। बेटा जल्दी करो। सिर्फ सेंटेंसेस नोट डाउन कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा कर ले। और हाँ भाई ये एक बच्चा सीन कर चुका है। ये जो लिखा है ना नंबर 5 पे जो लिखा हुआ है, उसके पास चूड़ियां लिखा हुआ है, छुरियां नहीं लिखा हुआ जो काटते हो, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, चूड़ियां लिखा हुआ है। अल्लाह के वास्ते ध्यान रखना इस बात का। ये माशाल्लाह हमारे एक भाई साहब थे, उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने छुरियां लिख दिया था, नाइफ्स लिख दिया। सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया है कि उसने काम कर लिया है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस नोट डाउन कर लिए। 8 तक सेंटेंसेस हैं मेरे बच्चों, जल्दी करो। ओके बेटा बीरा गुड, अलीशा बेटा गुड, शाबाश। आरफा, आरफा बेटा, वजिया बेटा क्या कर रहे हो तुम लोगों ने, नोट डाउन नहीं किया बेटा अभी तक?
ओके गुड। आरफा बेटा गुड, कर लिया तुमने? ओके कमल बेटा आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा स्टार्ट से क्लास के। मेरा बच्चा मैसेज करके तो मुझे इन्फॉर्म करो कि कितना काम हो गया। अमतुल बेटा आप बताओ ये काम कब तक होगा? अमतुल ये काम कब तक होगा? बेटा मुझे काम चाहिए, कुछ भी करो आप। अब आप ये बोलो डेटा कलेक्ट करते रहोगे, फायदा क्या होगा? इंशाल्लाह ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा तुम लोग काम करके लेके आना, ठीक है? मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स टैली भी करवा दूंगा और बेटा एक अलग लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इसको बेटा हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? मैं आप लोगों को बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक अलग लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज बेटा।